Good morning, friends. Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Here come with the new subject in new semester as a machine part, or name of the subject is design of AC machine. Before starting this whole discussion, let me introduce just one thing that you all well and during this COVID-19 situation. Hope so you guys are absolutely fine. Clear? Okay. If not, then take care of yourself and your family members because this is not a simple situation, and for that situation we are going to study or teaching you through online portal or through online way. So we are going to start our new subject. Before starting this subject, let me tell you one thought that keep in mind that am just ask yourself one question that are you seriously eligible for engineering graduate or to be an engineer? If not, then what are the improvements do you want, or how can one improve themselves in being as an engineer? One another thing that the only person who can stop to fulfill your dream is you. Some of people these things know through lectures during our class sessions, but again I repeat these things because at this time we are going to start new things, so you should keep in mind that yes, this is seriously point to be noted. Clear? Okay, so let's start with new topic, new subject as a design of AC machine. As per we all know that we are from GTU, so Gujarat Technical University provided this syllabus, and this subject code is 2170909. Subject name is design of AC machine. This is the part of core subject specifically in machine portion, but this is apart from that only machine, but this is regarding the design of the machines. So we should keep in mind that how should this machine design should be happen. We already studied the one part of the machine design of electrical machinery or electrical machines, that design of DC machine and transformer DDMT in your 6th semester or in previous sem. So almost which kind of parameters should we keep in mind, or how can we calculate the parameters regarding that machines, or specific idea about that designing of the machines. At that time we discuss design of DC machines and design of transformer. In this portion we are going to discuss design of AC machine. So what does it mean that AC machine, specifically induction machine and synchronous machine? So let's start with design of AC machine subject discussion. What is in the subject? So basically there are 4 chapters in your syllabus. As a first is design of 3-phase induction motor. One another that part of your syllabus is design of single phase induction motor. Third one is design of synchronous machine, and fourth one is design software or design applications as a finite element method, FEM. We will discuss it later on, but what are the components or what are the parts or syllabus topics covered in this first chapter, and how its weightage, how it is useful for your further study or further point of view as a your future. So first chapter as a design of 3-phase induction motor. The main parts are main dimension, stator design, rotor design, as well as it also have the performance parameters. What does it include? इसके अंदर जैसे कि मेन डायमेंशन है तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, दी आउटपुट इक्वेशन,
then after choice of specific electrical as well as magnetic loading, then after separation of D and L. Okay, then after the stator design, in which stator winding design, the calculation of the number of the turns as its conductors, conductor area, shape of that slots, length of air gap, and after all the discussion of stator design, we are going to discuss its numerical problems. Then after next topic is rotor design. There are two types of rotor in three-phase induction motor. We all know that as a squirrel cage rotor, so that it is called as a squirrel cage induction motor. Another one is wound rotor. Clear? So in which squirrel cage we will discuss the rotor slots, its harmonic effects, and how we can minimize it, and further discussion regarding its ripple or reducing of its ripple in the EMF and all the things or torque. But after that, for wound rotor we will also calculate the rotor slots, number of turns, cross section area, type of the winding, and so on. Okay, next one is performance parameter, in which we will discuss the no load calculation as well as stator and rotor resistances, reactances, leakage reactance, circle diagram, dispersion coefficient, maximum effect of maximum output for power factor, and so many things are there. One another portion is the design of submersible motors or submersible machines. After that, each and every topic there are some numericals, because we all know that this is the design subject, and numericals are also there, so we cannot just do theory portion and we can get a good score or good fundamental idea. Yes, we can get the fundamentally clearly idea that yes, these kind of these things happen to these and all the things like that, where these way we can design like it this way, the stator should be like this, rotor should be like these kind of specific magnetic loading should we keep, or these kind of power factor, and so many things are there. But these are the some things that we cannot just assume, but we should also know that how it affects, and these can be obtained by numerical, because it can visualize us that how it affects seriously. Clear? Then after next part, this chapter has 35% weightage, so you should understand the how important this chapter in your syllabus, because this is the major topic, or mainly first two questions are in your GTU exams from these chapters. Clear? So its weightage is approximately 35%. Next chapter is design of single phase induction motor, in which the design of main dimension, design of stator, rotor, and running winding or auxiliary winding. Then after performance parameter, as specifically there are rotor and stator resistances, losses, then starting torque, circle diagram, and calculation of capacitance for maximum torque. This is the most IMP topic for your GTU examination. One another thing that which topics are very important, or repeatedly asking questions are like these questions are very important. We will discuss in a specific portion of that particular topic, that this is very important topic, or we should keep these as an optional topic, because some topics are like that कि अगर हमें नहीं आता है तो उसके पीछे ज़्यादा एफर्ट्स देने से अच्छा है कि जो हमें आता है उसे हम ज़्यादा मजबूत करें. So this kind of provision is also there in this subject, because this subject has design portion. So some things are like that, उसे हम ऑप्शन में निकाल भी सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे कि जिसे हम ऑप्शन में नहीं ही निकाल सकते, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो हमें करना है वो करना ही पड़ेगा. सो समथिंग इज़ देयर लाइक हम ऑप्शन में रखे ना रखे वो हम जब टॉपिक की डिस्कशन करेंगे तब देख लेंगे. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर फॉर योर subject or syllabus is design of synchronous machine. As a specifically induction machine is discussed already. Then after the synchronous machine, in which output equation
Then after main dimension, short circuit ratio SCR, length of air gap, shape of pole, armature design, field system design. Then after main topic, apart from this synchronous machine, the design of turbo alternator is also in your syllabus. We will also discuss all the things in your सेशन ऑफ योर नेक्स्ट लेक्चर्स, और ये पूरी सीरीज में आपको इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल्स पूरी मिल जाएगी. देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड इन डिज़ाइन. बट पहले हम सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं, तो उसका वेटेज भी जैसे हमने देखा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का वेटेज है 35%, सेम वे इसका भी वेटेज है 35%. सो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर मुझे सिर्फ 5-25 क्वेश्चन ही करने हैं लेकिन मैं पास हो जाऊँ और अच्छा स्कोर हो जाए, तो ये 2 चैप्टर्स भी आप अगर करते हो, फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर एज ए डिज़ाइन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, एट दैट टाइम आपको अच्छे स्कोर का तो मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन यस यू कैन अटेंड एटलीस्ट 50+ मार्क्स, एंड दैट इज़ टू मच इनफ फॉर पासिंग स्टूडेंट्स. बिकॉज अगर आप सिर्फ पासिंग का गोल रखते हो तो आपके लिए सिर्फ 35 या 23 मार्क्स का ही लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आप 50 का अटेंड करते हो तो एट दैट टाइम आपके लिए रिजल्ट मेंटेन करने में भी आपको यूज़फुल होगा, क्योंकि अब आप 7 सेम में है तो आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव होना चाहिए. बिकॉज दिस लीड्स टू गुड CGPA एंड गुड CPI. सो आप समझ ही रहे होंगे कि ये 7 सेमेस्टर है, जैसे कि हमारे 4 सब्जेक्ट है तो उसमें से इसका भी कुछ वेटेज है, और इसकी क्रेडिट्स भी 5 है, 3+2, जैसे कि 3 थियरी +2 प्रैक्टिकल्स. Next topic is application of finite element method FEM in the design. In specifically that topic, we will discuss the introduction of FEM, its application and its design problem. But जैसे कि हमें पता है कि ये GTU के अंडर में हम देखें तो इस चैप्टर का वेटेज ओनली 15% है, जैसे कि 15%, जैसे कि हमारा सेकंड चैप्टर का था कि डिज़ाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो वेटेज था 15%. तो इसका भी वेटेज कुछ ज़्यादा नहीं है, 15% है, तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है. ओनली 2-3 टॉपिक्स है, तो अगर हम उसके रिगार्डिंग या फिर उसको ब्रीफ करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या आता है, कि मेनली व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ये मेथड में क्या होता है, इसके अंदर जो इसकी एप्लीकेशंस है वो क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है. अगर इतनी चीज़ें पता है तो वो हमारे लिए ऑलमोस्ट काम बन जाएगा कि नहीं, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. सो ओवरऑल हम वेटेज देखें तो 35, 15, 35, 15. सो टोटल syllabus is 100% is completed. But our syllabus topics are, or chapter or unit, we can say only 4 unit or 4 chapters are there only. So अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर मुझे ज़्यादा देख के डर लगता है, तो आपके लिए अच्छा है कि सिर्फ 4 ही चैप्टर है. लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर मुझे अच्छे से स्कोर करना है, तो मैं आपको ऐसी बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि ये चैप्टर या ये टॉपिक आप ऑप्शन में निकालो, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है. प्लस इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमें मशीन तो आता ही है कि भाई हमारे मशीन में क्या हमने पढ़ा था. जैसे कि 4th सेम में हम लोग AC मशीन 2140906 सब्जेक्ट कोड, अगर आपको याद होगा, शायद सारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे SSIT में है वो सारे ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़े हैं या मेरे पास ही पढ़े होंगे. सो अगर आपको AC मशीन का फंडामेंटल बेसिक पता है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग और बनेगा, क्योंकि जब मशीन आपको याद आता होगा तो उसके रिगार्डिंग आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं है इसके अंदर तो ये करना है, हाँ मुझे याद है इसमें ये है. वन अनदर थिंग, जो लोग न्यूमेरिकल से भागते हैं कि नहीं सर मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है या मैं नहीं कर सकता, तो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक एडवाइस जो कि नोट के रूप में दी गई है कि मिनिमम 30 to 40% वेटेज शुड बी गिवन फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ थियरी एग्जाम्स. सो आपकी जो थियरी की एग्जाम होगी, एक्सटर्नल एग्जाम्स ऑफ GTU 70 मार्क्स, in which 30 to 40% weightage, it means approximately 21 to 28 marks should be for numerical option or numerical portion. So ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है कि भाई मुझे न्यूमेरिकल पोर्शन में कितनी चीज़ें करनी है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा ये चीज़ करनी ही है, ये नहीं ही करनी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको करना है वो तो डेफिनेट है. कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा. सो आप भी उसके लिए शायद प्रिपेयर ही होंगे.
और होना भी चाहिए, क्योंकि अब हम नए सेमेस्टर में आ रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो ऑलरेडी हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें करियर में आगे बढ़ना है। तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट है और प्रोजेक्ट है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट का भी इतना ही इम्पोर्टेंस होगा। और ये सब्जेक्ट जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स में से इसका वेटेज आप देखो तो नॉर्मली डिज़ाइन ऑफ मशीन, तो नॉर्मली कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अगर कोई नया सब्जेक्ट है जैसे कि आपको उसके रिगार्डिंग कुछ पता ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो आपका मशीन, तो मशीन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसकी डिज़ाइन के रिगार्डिंग बात करनी है, तो उसके लिए मशीन के फंडामेंटल आपको शायद याद होंगे। अगर नहीं है तो मेरी आपसे एडवाइस है कि स्टार्टिंग या इनिशियल 2-4 लेक्चर हो तब तक आप मशीन के फंडामेंटल को थोड़ा इम्प्रूव कर लें, क्योंकि ये आपको आगे जाके थोड़ा यूज़फुल इसलिए रहेगा कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे है कि टाइम लिमिट की वजह से मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता कि भाई उसकी थियरी क्या है, इवन आपके सिलेबस में अभी इम्पोर्टेंस भी नहीं है, लेकिन ये क्यों होता है या फिर ये कैसे आया वो तो हमें पता होना ज़रूरी है। वो कैसे पता चलता है कि जब आपके पुराने फंडामेंटल्स क्लियर हो। अगर आपको उसके रिगार्डिंग बात करें कि भाई आपके पुराने फंडामेंटल आपको कैसे रिवाइज करने हैं या ब्रशअप करने हैं, तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट जैसे कि डिज़ाइन ऑफ डीसी मशीन के टाइम पे भी मैंने बताया कि मशीन के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक अकॉर्डिंग टू मी इज़ JB Gupta from Kataria publication, Kataria and Sons publication, I think. Then after Mr. DP Kothari and IJ Nagrath, Kothari search book is also very fine book, but don't be part of the textbook way, because कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा प्रीफर किया होगा, जैसे कि JG जमनानी साहब की बुक थी महाजन पब्लिकेशन की कि भाई 4th सेम में आप मशीन की जो बुक है तो वो काफ़ी कम सिलेबस, और जो आपको सिलेबस है उसके हिसाब से सिर्फ टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू ही दिया है। कुछ लोगों को ऐसी चीज़ अच्छी लगेगी भी कि नहीं सर हमारे पास टाइम कम है, हमने पहले प्रिपेयर नहीं किया, तो एट द टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सही है, लेकिन फंडामेंटली अगर आपको पूरा क्लियर करना है और आपका पूरा मशीन पोर्शन साउंड होना चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके लिए JB गुप्ता इज़ बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप JB गुप्ता को एक बार फिर से रिवाइज करो, एक बार उसके बेसिक फंडामेंटल्स, जो कि मशीन के फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी थोड़े कुछ तो पता ही होंगे, जैसे कि भाई इसके अंदर EMF इक्वेशन है या फिर टॉर्क इक्वेशन है या फिर इसका नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट रेशियो, सर्कल डायग्राम्स, देन आफ्टर लॉसेस, एफिशिएंसी एंड मैनी पैरामीटर्स, जैसे कि हमें पता ही है कि ये ऐसी चीज़ें या फिर हार्मोनिक्स है, हंटिंग जैसी इफेक्ट्स है, कोगिंग क्रॉलिंग इफेक्ट्स है, या फिर हाउ वी कैन मेजर दी लीकेज रिएक्टेंस, और ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मशीन के टाइम पे भी मैंने बताया था कि नहीं इसका इम्पोर्टेंस कितना है वो आपको अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पता है, ऐसे ही आपको इन फ्यूचर भी पता होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ों को आप अगर ब्रशअप करना चाहते हो तो एक बार JB गुप्ता या फिर नागराथ एंड कोठारी सर बुक इज़ ऑल्सो फाइन, अनदर बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, अगर आप वो चाहते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टेक्स्ट बुक्स पे अभी हो सके तो मत जाइए, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करनी है, अभी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, तो इसके लिए रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें, थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक हम रिफ़र करते हैं। सो नॉर्मली हमारी जो बुक्स है रेफरेंस बुक, जैसे कि कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन बाय AK सावनी सर, इट इज़ वेरी फाइन बुक और वेरी गुड बुक एज पर योर सिलेबस, नॉट ओनली एज ए टेक्स्ट बुक बट इट इज़ दी रेफरेंस बुक। अगर आप लोगों को ऐसा है कि सर हमें इसका ऐसी चीज़ें चाहिए कि नहीं सर हमें सिर्फ थियरी कंटेंट ऐसे ही करना है कि जिसका, या फिर थियरी प्लस न्यूमेरिकल सिर्फ GT ओरिएंटेड ही करना है, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक्स काफ़ी अवेलेबल है, जैसे कि DM पटेल सर की जो भी हमारी बुक है अतुल पब्लिकेशन थ्रू, या फिर टेकमैक्स थ्रू भी एक बुक आती है हमारे डिज़ाइन के लिए, तो मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको उसके साथ साथ AK सावनी बुक भी अपने पास रखनी होगी, क्योंकि ये AK सावनी बुक जो है डिज़ाइन की ऑलमोस्ट डिज़ाइन के सारे टॉपिक्स कवर कर लेती है। उसके अलावा एक और बुक है RK अग्रवाल एंड VN मित्तल की भी, मित्तल साहब की भी बुक काफ़ी अच्छी है कि भाई नहीं वो बुक में भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। देन आफ्टर RK अग्रवाल वाली बुक जो है मशीन डिज़ाइन की वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी आपको टफ रहेगी,
जैसे कि मशीन में मैंने बताया था कि नागराथ एंड कोठारी सर्स बुक इज़ ऑल्सो फाइन बट इट्स लैंग्वेज इज शुड समथिंग डिफरेंट फॉर योर लेवल। सो मे बी आप अगर बेसिकली या इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मशीन के फंडामेंटल के लिए जेबी गुप्ता एंड डिज़ाइन फंडामेंटल के लिए ए सावनी बुक इज़ वेरी बेस्ट बुक। एज पर हमने सिलेबस में देखा कि 30 to 40% वेटेज न्यूमेरिकल का रहेगा, तो थोड़ा उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। सो दीज आर दी कोर्सेज आउटकम, वो तो हमारी अलग की बात है कि भाई आउटकम तो हमें एफर्ट्स देंगे तो मिलेंगे, पहले हम एफर्ट्स के ऊपर फोकस करें। वन अनदर थिंग कि ये हुआ थियरी पोर्शन, अब लेब पोर्शन या फिर प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या रहेगा, तो इसके अंदर डिज़ाइन शीट्स रहेगी जो कि आपको लेब सेशन में हम ड्रॉ करवाते हैं, वैसे ही आपको इसके भी लेब सेशन जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स में होगा एट दैट टाइम आपको उसका डिज़ाइन पोर्शन रहेगा। तो उसकी डिज़ाइन शीट ड्रॉ करनी है, उसके अंदर डिज़ाइन कंपोनेंट्स रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट शीट हमारी रहेगी डिज़ाइन ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर कंपोनेंट्स, तो उसके अंदर हम इंडक्शन मोटर के कंपोनेंट्स है वो सारे ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर सिंक्रोनस मशीन के कंपोनेंट्स की भी एक शीट रहेगी। देन आफ्टर कंबाइंड डिज़ाइन और ओवरऑल डिज़ाइन फॉर दी 3-फेज इंडक्शन मोटर एज वेल एज सिंक्रोनस मोटर, बिकॉज इट्स वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ ईच। सो उसका वेटेज हमें पता है कि 35 to 40% है, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो उसकी हम डिज़ाइन शीट भी ड्रॉ करेंगे। एक्सटर्नल वाइवा के टाइम पे आपको ये चीज़ जो मैंने मशीन के फंडामेंटल की चीज़ बोली वो क्यों आपके लिए यूज़फुल है, बिकॉज वाइवा के टाइम पे आपको सिर्फ डिज़ाइन के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि दिस इज़ द एडवांस लेवल सब्जेक्ट ऑफ योर मशीन। सो आपको मशीन के फंडामेंटल जितने आते हैं उसके ऊपर ही वो आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। देन आफ्टर वो डिज़ाइन पे जाएंगे, क्योंकि जब आपको मशीन का ही नहीं पता है तो डिज़ाइन करोगे क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सो एक्सटर्नल एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपके लिए बेटर प्रीफरेबल रहेगा कि आपका मशीन को फंडामेंटल याद रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं सजेशन के लिए कि सर हमें ये नहीं पता है कि इसके वाइवा के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये तो डिज़ाइन सब्जेक्ट है, कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो हम बता भी सकते हैं कि नहीं इसके अंदर ये करना है, लेकिन अब इसमें हम क्या करें। सो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उसके लिए पहले से ही आप मशीन के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपको इन फ्यूचर जबकि कोई वाइवा हो या इंटरव्यू के टाइम पे कोई अगर मशीन डिज़ाइन के बारे में पूछता है तो आप इतने स्ट्रॉन्ग तो होने चाहिए कि नहीं आप डिफाइन कर सको अपने आप को कि नहीं मुझे ये इतनी चीज़ें डेफिनेटली पता है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि डिज़ाइन का स्कोप, फ्यूचर स्कोप आप देखें तो काफ़ी अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल साइड से डिज़ाइन इंजीनियर्स बहुत कम बन रहे हैं। सो अगर किसी को डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर को भी आप थोड़ा अप्रोच करें, एज वेल एज उसके साथ में आपको दूसरी चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपके मशीन के फंडामेंटल है उससे आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हर एक पैरामीटर का विजुअलाइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ का क्या रोल होता है। कोई कंपोनेंट को आप देखते हैं तो उसका मतलब रोल है कि उसके परफॉर्मेंस पे अगर ये चीज़ में वेरी करता हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हम नॉर्मली देखें कि भाई नंबर ऑफ पोल्स की क्या इफेक्ट आती है, या फिर हम टर्न्स की बात करें, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके टर्न्स की क्या चीज़ है कि भाई ये वेरी होता है तो क्या होता है, ये होगा तो क्या होगा। अगर इतनी बेसिक चीज़ें भी अगर आपको पता होती है तो आप थी मतलब आप डिज़ाइन के पोर्शन में अपना करियर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। डिज़ाइन के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी आपको यूज़फुल होंगे, लेकिन वी आर एट दिस स्टेज कि हम अभी डिग्री गेन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी डिग्री लेवल का हमारा सिलेबस है तो हम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे, लेकिन स्कोप काफ़ी अच्छा है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। दिस इज़ द डिस्कशन पोर्शन ऑफ योर सब्जेक्ट एज ए डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन। शायद ये तो इंट्रोडक्शन ही हुआ है, तो मैं आपको इसके लिए तो कोई असाइनमेंट या ट्यूटोरियल वर्क की तो कोई अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप पूरे सिलेबस पे गो थ्रू हो जाइए कि नहीं इसके सिलेबस में क्या क्या है। आप कोई भी बुक रिफ़र करना चाहें कर सकते हैं, मेरा उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टेक्मैक्स या फिर अतुल या फिर एक के सामने मुझे कोई बुक से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। आई सपोर्ट ईच एंड एवरी ऑथर्स बिकॉज सारे ऑथर ने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट है वही आप हमारे लिए भी अच्छा है कि फैकल्टी क्या चाहेगा कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहे। सो आपके लिए सारी बुक्स अवेलेबल ही है, अगर आपको लाइब्रेरी में भी ये सारी बुक्स हमारे यहाँ मिल जाएगी।
बट अगर किसी को सॉफ्ट में चाहिए, अगर ये लॉकडाउन के पीरियड में आप कॉलेज लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भी आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल या मैसेज थ्रू या मेल थ्रू भी मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इसके रिगार्डिंग ये मटेरियल चाहिए, तो आपको पूरा मटेरियल मैं आपको सेंड करवा दूंगा। क्लियर? सो ऑलमोस्ट आप सबको ये सब्जेक्ट के बारे में जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो सारा क्लियर हुआ होगा कि नहीं, हाँ ये सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं, हमारे लिए कितना क्या इम्पोर्टेंट है। होप सो यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।